Yes, so with this now we'll start with the eukaryotic cell. So how will you define eukaryotic cell? Let me first understand what you understand from the eukaryotic cell. Eukaryotic cells means multicellular organisms, Mm-hmm. well-developed nucleus. Yeah, so that is main. U is developed, karyon is nucleus. So when you say eukaryotic cell, that meaning they have the well-developed nucleus. That should come first. All the eukaryotes are not multicellular. So you should not be saying that. Or if you want to say, then you can say eukaryotic cells may be unicellular or Or multicellular. multicellular. Yeah, with well-developed nucleus. Okay. Now, when I say well-developed nucleus, what does that mean? So they have this nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm, and chromatin material or chromatin fiber. है ना? So that is what is a eukaryotic cell. Now, what is the meaning of prokaryotic cell? Prokaryotic cell meaning they are always unicellular. Here you can't say they are unicellular or multicellular. Getting the difference? Yes. Further, you will have to differentiate between eukaryotic and prokaryotic. That too, eukaryotic may be plant cell and animal cell. So unicellular with a simple genetic material, which is called as nucleoid. Their genetic material is not well developed. The way the nucleus is not well developed, it is simple naked DNA in cytoplasm, which is a nucleoid. Clear? Yes. So that is a eukaryotic cell. Now actually there is a Whittaker 5-kingdom classification system. The scientist Whittaker, we are going to do this again in your biological classification. Scientist Whittaker has given the 5-kingdom classification system. Okay. So how he classified 5 kingdom, this very popular, and you must remember because you get question on this also. To the base, it is Monera. Okay. Monera, then it is Protista. Then it is Timor, that is Fungi, Plantae, and Animalia. Okay. This is Whittaker's 5-kingdom classification. Out of this, जो हमने प्रोकैरियोट स्टडी किया उसका किंगडम है मोनरा. So prokaryotic is from this particular kingdom Monera. So only and only Monera, the way I said, only and only Monera, which includes bacteria, are prokaryote in this word. बाकी कुछ भी prokaryotic नहीं है बैक्टीरिया को छोड़ के. Okay. So all these are the Whittaker's next 4 kingdom: Protista, fungus, Plantae, and Animalia. So all these are the eukaryotes. Got it? There was one drawback in the Whittaker's 5-kingdom classification, and that drawback was Whittaker has not given the place for viruses. है ना? इसमें सभी आ गए. All living organisms are included in the Whittaker's 5-kingdom classification. Prokaryote का kingdom is Monera. Okay. So all the 5 kingdoms are included, which includes all living organism in this world, but only there is no place for viruses, because viruses altogether we know they are altogether different, है ना? They are obligatory intracellular parasite which either contain DNA or RNA but never both. I hope you are writing a. Yes. Got it? So बाकी छोड़ के तो मोनरा था, प्रोटिस्टा था, फंगस, प्लांटी एंड एनिमैलिया. So ये सभी now are eukaryote. What does that means? Their nucleus is well developed. Okay. And as there is eukaryote, you know eukaryote contain membrane bound organelles. है ना? It contains membrane bound organelles
and also non-membrane bound organelles like centrosome. Okay, so पूरे सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नो मेम्ब्रेन वाले सभी ऑर्गेनेल यूकैरियोट में है. एंड इसीलिए यूकैरियोटिक सेल देयर इज अ एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. मतलब इसका मतलब क्या, यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म में काफी बाकी भी ऑर्गेनेल है जो हमने ड्रॉ किए थे. क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है एंड व्हाट नॉट. सो देयर इज अ एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन. मतलब इसका साइटोप्लाज्म जहां पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, where the cell organelles are present, what is that region called as? Yes, बोलो. साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है एंड जहां पे भूल मत जाना मेरे बच्चों, अगर ऐसे भूल गए तो कैसे चलेगा. 23 तक मैं ये टॉपिक नहीं करने वाली हूँ. कितनी बार मैंने बोला आपको, जहां पे ये सब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज, बोलो पूरे, अभी आगे बोलो, मराठी एंड हिंदी मिक्स. चलो आगे बोलो. साइटो प्लाज्म. सोल, नॉट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म मतलब ये इतना रीजन. ओके, ये पूरा रीजन. और जहां पे बेसिकली सेल ऑर्गेनेल है ना, उसको एक अगेन स्पेसिफिक टर्म दिया, साइटोसोल. समझ में आ रही बात. आप पीछे का अगर आपने लिखा होगा, मैंने बोला था आपको वो स्लाइड का फोटोग्राफ ले लो, उसमें आपको ये सब आएगा. तो दैट इज अ साइटोसोल where the different cell organelles are located. हा कुठे गेला ग आज गौतम? Let me put him on message. Okay, so आ रही बात समझ में? ये साइटोसोल का मतलब समझ में आ रहा है या डाउट है? समझ लो. Okay. So that is what is a eukaryotic cell. Okay, तो इसमें काफी कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब ये एक रूम है, समझो आप, ये एक रूम है, सेल एक अपार्टमेंट है या आपका एक फ्लैट है. ओके, न्यूक्लियस मेजर रीजन है, तो अपने घर में मेजर रीजन इज किचन, जहाँ पे अपने खाने पीने का सब होता है. So this is a kitchen. Okay, then you have the different room. एक मेरा रूम, एक मास्टर बेडरूम, एक गेस्ट रूम, एक चिल्ड्रन रूम, and all these rooms, they are the compartmentalization. समझ में आ रही बात? So compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organ. Okay, so kitchen is the main region as per my this thing, क्योंकि वहां पे पूरा, and you know that food is the most important component for living. तो वो सब है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, चलिए. Ma'am, this doesn't happen in prokaryotic cell. Yeah, this because doesn't happen. cytoplasm- No compartmentalization because there are no membrane bound organ. ओके, तो साइटोप्लाज्म में सब कुछ उधर ही है, उसको किसी को मेम्ब्रेन नहीं, किसी का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं. तभी तो वो इतना सिंपल सा सेल है, इतना सा सेल जो आंखों को दिखता नहीं, 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एवरेज. बोलो. So it is only for membrane bound organelles. Yeah, it is compartmentalization is only in eukaryotic cell, that too because of the membrane bound organelles. Right? और कुछ डाउट आ रहा है इसमें? नहीं. हाँ, चलो. So protist, this is slipper shape. क्या है ये? Paramecium, you can say this is amoeba-like structure. Okay. This is euglena, जिसको ये flagella है.
तो दिस इज अ यूग्लिना. ओके, प्रोटिस्ट है ये भी. दिस इज अगेन द डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामोशियम. प्लांट्स में यू नो देयर आर सेवरल प्लांट्स विच आर अगेन अ यूकैरियोटिक सेल. आपको सेल का मतलब समझ में आ रहा है ना. सो सपोजिंग ये प्लांट का मैं लीफ ले लूं, लीफ में से इतना सा पोर्शन में निकालू, है ना, इतना सा पोर्शन में निकालू और उसको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं, तो इसमें मुझे काफी सारे सेल्स मिलेंगे, काफी सारे सेल्स मिले. ओके, फ्लावर का पेटल भी मैं निकाल लूं, इसको मैं माइक्रोस्कोप में देखूं, तो इसमें भी काफी सारे सेल्स मिले. ओके, एंड ये काफी सारे सेल्स, दीज आर यूकैरियोटिक. इसमें हर एक सेल में सब रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, बाकी सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड एवरीथिंग वुड बी देयर. सो प्लांट सेल. एनिमल में यू टेक एनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, उनका सेल स्ट्रक्चर वुड बी सेम. ओके, fungus. So there are variety of this fungus. Again, the cell structure would be same. Okay, so what makes the cell eukaryotic? Yes, what makes the cell eukaryotic? Well-developed nucleus. Yeah, it is a well-developed nucleus. Okay, an organized nucleus with nuclear envelope. Nucleus also we are saying it is a double membrane bound structure. Organized nucleus with an envelope. Okay, so they have variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. हम लोग ये सब डिटेल में करेंगे. In eukaryotic cell, the genetic material is organized into chromosome. Chromosome कब बोलते हैं हम उसको, मैंने इस पे भी आपको बोला था. So chromosome and it is a chromatin fibers. क्या फर्क है दोनों में? Chromosomes, yes, वो क्रोमोसोम्स एक साथ ऐसे होता है एंड क्रोमैटिन अलग होता है. थीकन स्ट्रक्चर ना, ये जो देखते हैं आप, ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, है ना. So chromosome is a thickened structure and chromatin fiber is just a thread-like structure. Okay, and जब ये सेल डिवीजन पे रेडी होगा, सेल which is having chromatin fiber ये न्यूक्लियस में, when it is ready for cell division, then it will turn into the thickened structure that is a chromosome. And तब हमें, like if it is a human cell, उसके न्यूक्लियस में अपने को कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे? कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे? 6. Yes, 23 pairs. pairs. 23 pairs म्हणजे किती? 23 pairs. 46 Oh, total 46. chromosomes. Yes. So when you can see this chromosome structure, this chromatin fiber आपण असे कसे पण thread like काढलेले. So this chromatin fiber, when the cell is ready for division, this chromatin fiber will turn into the thickened structure like this, and that is called as a chromosome. So if it is a human cell, we have 23 pairs. Every cell, that is the only difference. Every cell, like if you take elephant cell, उनका क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर्स नहीं रहेगा, उनका डिफरेंट है. इफ यू टेक कैट, उसका डिफरेंट है. इफ यू टेक एनी प्लांट, उनका हर एक प्लांट का अपना अपना क्रोमोसोम नंबर अलग है, बाकी सेल स्ट्रक्चर वुड बी सेम. सो 2n, अपना 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स. हर एक का 2n अलग अलग रहेगा. आर यू गेटिंग मी? सो दिस 2n इज अ डिप्लॉयड स्टेट. 2n इज अ डिप्लॉयड स्टेट. So हर एक का 2n would be different. समझ में आ रही बात? Yes, कोई डाउट आ रहा है इस पे? हाँ. So all the eukaryotic cells are not identical. Plant में और animal cell में there are differences. So we already studied a few differences in plant and animal cells. So major difference is प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल में सेल वॉल नहीं है. प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, तो दिस इज अ एनिमल सेल है. क्यों? इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं ड्रॉप है. सो दिस इज अ एनिमल सेल. सो आई विल राइट हियर दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ एनिमल. तो सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में नहीं है.
क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है, एनिमल में नहीं। और क्या बोलो, वैक्यूल इज वेरी बिग इन प्लांट सेल, वैक्यूल इज वेरी स्मॉल इन प्लांट्स, है ना। लाइसोसोम इज प्रोमिनेंटली वर्किंग इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में इतना सिग्निफिकेंट रोल उसका नहीं है। So these are few differentiating and the major differentiating point between the plant cell and animal cell. ओके, तो प्लांट सेल में क्या क्या है देखिए, सेल वॉल है, प्लास्टिड है, जो ऑलरेडी हमने बोला, सेल वॉल है, प्लास्टिड मतलब इट इज अ क्लोरोप्लास्ट and a large central vacuole because it has to store cell sap. So it is having a large central vacuole in case of plant cell. Easy है ना ये? Yes. Centrioles are again absent in many क्या, in almost all plant cells. Almost लिखा है, so that is again one of the differentiating point. Centrioles are not present in plant cell and that centrioles are present in animal cell. आ रही बात समझ में? Cell wall, plastid and large central vacuole are absent in animal cell and centriole is present in all animal cell. तो डिफरेंशिएशन क्लियर है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वापिस से। हाँ बोलो, चलो मैं आई राइट हियर, दिस इज अ प्लांट सेल and this is an animal cell. Both the cells are eukaryote. Agreed? क्यों eukaryote? Because उनका न्यूक्लियस दोनों का is well developed. First point, cell wall present, cell wall absent. Second point, Centriole are absent, centriole are present. yes, centriole absent, centriole present. Next point, Vacuoles are big. vacuoles are very big. Very big. Vacuoles, if they are present, very very small. Next point, keep writing. Next point, और एक भूल गए। Plastids. Exactly. Plastids are present. Plastids are absent. Golgi complex in case of plant is called as, that day we discussed this also. Golgi complex in case of plant is called as dictyo. This is C, dictyosome. Okay, and it is simply a Golgi complex. So you get question on this dictyosome. Golgi complex in case of plant cell is also called as a dictyosome. So that is basic difference between the plant and animal cell. Now we are moving towards the detailed structure of membrane, which is a cell membrane. क्योंकि हमने क्यों पहले cell membrane लिया? Because it is common in all cells. सब में होता है, यूकैरियोट में भी है and प्रोकैरियोट में भी cell membrane है. We mentioned that, है ना? So the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, Knoll and Ruska scientist in 1950. Again, this is another scientist. Keep adding the name of scientist. अगर आपने नोटबुक अच्छे से बनाया है तो एक पेज वहाँ पे टॉपिक शुरू करते हो ना. Supposing you have started this cell topic, इसका first 2 pages है ना, एक पेज और इसके बाजू वाला एक पेज है ना. तो दिस पेज यू लीव फॉर साइंटिस्ट, और जो भी साइंटिस्ट के नाम आएंगे ना उसमें कीप ऑन एडिंग दिस साइंटिस्ट नेम. ये 2 पेज छोड़ ही दो एंड यू कैन पुट योर स्टिकी नोट्स. स्टिकी नोट्स आते हैं ना वो, जहाँ पे आप, yes yes हाँ, you understand ना what I'm saying. स्टिकी नोट्स मेरे पास इधर गए. हाँ, दिस टाइप ऑफ स्टिकी नोट्स है ना, इसको निकाल के आप इधर उसको उस पे लिखो सेल के साइंटिस्ट है इसमें. तो आपको कभी साइंटिस्ट फटाफट सब करने हैं और उसके बाद सब टॉपिक होने के बाद और 3-4 टॉपिक होने के बाद आप एक पेज पे उसको कंपाइल करो, ऑल साइंटिस्ट फ्रॉम दिस 3 टॉपिक्स. तो यू कैन मेक योर नोटबुक एज योर बाइबल और योर गीता, भगवत गीता, जो भी आप जिसको भी चाहते हो
वो आप वैसे बना के रखो तो आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, है ना। ओके सो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो ये सभी साइंटिस्ट नॉल एंड रस्का ने सेल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा। And then the first why we are studying cell membrane, because it is common to all the cells. So this is a cell membrane. And cell membrane की जब हम बात करते हैं तो जनरली तुम्हारे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि आरबीसी का डेटा दिया। सो जनरली जो भी सेल मेम्ब्रेन का स्टडी करना होता है, सो वेरी सिंपल, साइंटिस्ट आरबीसी का मेम्ब्रेन निकाल लेते हैं और उसके बारे में पॉसिबल स्ट्रक्चर जो भी होगा सेल मेम्ब्रेन का, वो आरबीसी एज अ मॉडल वो यूज करते, बिकॉज टू गेट आरबीसी इज इजी, है ना। ब्लड में से आरबीसी निकालो एंड आरबीसी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सेल टू स्टडी एनीथिंग रिलेटेड टू द सेल मेम्ब्रेन। ओके सो देयर आर द वेरियस मॉडल्स, बट लेकिन आरबीसी का जो डेटा आपके एनसीईआरटी ने दिया है, सी हर एक सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या मेजर कंपोनेंट होते हैं। एनी सेल के मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, दैट कंटेन्स प्रोटीन। ओके प्रोटीन्स होते हैं उसमें लिपिड्स होते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तीन चीजें होती है इन द मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल। नाउ एनी सेल मतलब क्या कि हमारे पास कितने टाइप्स के सेल है, देखो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट है, मसल सेल है, नर्व सेल है, इपिथेलियल सेल है, and we said that we have total 200 different types of cell, है ना। तो ये सब 200 डिफरेंट टाइप के सेल मेम्ब्रेन में कंपोनेंट कॉमन होते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अभी अगर मैं एवरेज सभी सेल का मिला के एवरेज बनाऊं तो प्रोटीन सभी सेल में जनरली सभी सेल का एवरेज बना के 58 to 59% प्रोटीन होता है। ये आप लिखिए एनी सेल। आरबीसी का तो डेटा आपके एनसीईआरटी ने दिया है, वो तो आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, सो बेटर यू कीप राइटिंग। लिपिड्स अगर एनी सेल का एवरेज मिला लूं मैं तो लिपिड 40% एंड 1 to 2% फिर इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके मिला के बन गया एनी सेल का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के नीचे वाला जो मेम्ब्रेन है, सो दिस इज अ सेल वॉल। नाउ प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता है, सो वी आर फर्स्ट टेकिंग और वी आर फर्स्ट स्टडीइंग सेल मेम्ब्रेन। ओके सो एनी सेल का मैं मेम्ब्रेन में क्या क्या कंपोनेंट है देखूं तो एनी सेल के मेम्ब्रेन में आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, आपको लिपिड्स मिलेंगे, लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड। हाँ लिपिड किसमें है, मेजरली फॉस्फोलिपिड फॉर्म में है, एंड द कार्बोहाइड्रेट। यू कैन सी हियर द कार्बोहाइड्रेट चेन। आरबीसी का डेटा आपके एनसीईआरटी ने दिया है, प्रोटीन इन आरबीसी इज 52%, lipid in RBC is 40% and carbohydrate in RBC is 8%। ये स्पेसिफिक आरबीसी का है, राइट। लेकिन मैं ये 200 टाइप्स के जो सेल है उसका एवरेज बना लूं तो ये उसका कंपोनेंट का जनरली एवरेज रहेगा। इस पे आपको डेटा नहीं दिया, ये मेरा डेटा है, मेरा रिसर्च है, ये जो है ये आरबीसी का आपके एनसीईआरटी ने डेटा दिया है। क्लियर हो रही बात। तो सेल मेम्ब्रेन की सबसे डिटेलिंग कभी शुरू हुआ, व्हेन देयर वाज अ डिस्कवरी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा एडवांस स्टेज पे उसका डिस्कवरी हुआ, तो देन वी स्टार्टेड स्टडीइंग दिस। Now there are the various models. Many of the scientists tried to explain these various models of the cell membrane. So this was the first model given by Davson and Danieli. ये मॉडल इन्होंने दिया this model given in 1935. Okay, सैंडविच मॉडल था, दिस वाज अ सैंडविच मॉडल। इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। Sandwich model given by Davson and Danieli. This has not given by your NCERT, but then yes, still you should be knowing this. Otherwise, NEET में तो काफी बच्चे स्कोर कर लेते, सिर्फ NCERT ही रटना होता तो 80%, you can say 80 to 85% NCERT
हम लोग ये 80 to 85% का 100% करेंगे एंड रिमेनिंग 10 to 15% नोबडी कैन गारंटी क्या आएगा, बट स्टिल आई मीन जो भी पॉसिबिलिटी है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो ये डैनियल एंड डेवसन का मॉडल है। इसमें उसने क्या एक्सप्लेन किया कि ये जो है दिस इज अ लिपिड मेम्ब्रेन, ये जो ऐसा जो है दिस इज अ लिपिड मेम्ब्रेन, दिस इज अ सैंडविच मॉडल और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्राइलैमिनर मॉडल। ट्राइलैमिनर मॉडल समझ रहा है आपको या बोर हो रहा है? यस, आर यू एंजॉयिंग द समझते। क्लास? हाँ दिशा? Yes, ma'am. हाँ okay, so this was a Daniel and Davison sandwich model which is also called as a trilaminar model. okay, इसमें ये जो है ये जो बीच वाला लेयर है दिस इज अ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में ऐसा एक हेड है इसका, दिस हेड, ओके, एंड दिस इज द टेल। ओके, हेड जो होता है दैट इज अ हाइड्रोफिलिक, इसमें दो एंड है उसको, हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड जो टेल है उसकी दैट इज हाइड्रोफोबिक। फिलिक मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फिलिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोबिक? बोलो। फिलिया, यस, फिलिक मीन्स टू लाइक और टू लव एंड फोबिक इज टू हेट। जो इसका ये रीजन है विच कंटेन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर क्यों? क्योंकि दो लेयर है, फॉस्फोलिपिड के दो है, दिस इज वन लेयर एंड दिस इज अनदर लेयर। समझ में आ रही बात? एंड देन उसके ऊपर नीचे देयर इज अ प्रोटीन रीजन, सो ये प्रोटीन है, इधर भी प्रोटीन, दिस इज आल्सो प्रोटीन। And so there are three layers: protein, phospholipid, protein. Okay, and hence this is called as a trilaminar model or sandwich. Sandwich क्यों? बीच में फॉस्फोलिपिड का सैंडविच बना दिया प्रोटीन, हाँ है ना? पण सँडविच मध्ये दोन ब्रेडचे हे घेऊन स्लाइस घेऊन त्याच्या आतमध्ये काहीतरी व्हेजिटेबल किंवा जे काही असेल ते टाकतो ना, सो सँडविच. ओके, and this was a sandwich model, but this model was not accepted as it was failed to give the scientific proof, and hence this model was not accepted. Okay, later on the scientist Robertson, later on the scientist Robertson, he has given this unit membrane model. Okay, he has given this unit membrane model somewhere in 1959. बघा सायंटिस्ट ऍड करा, सायंटिस्ट पेज मध्ये सायंटिस्ट ऍड करत चला. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाय दिस रॉबर्टसन. नाउ दिस मॉडल वाज अगेन सेम, तो इसने भी क्या बोला कि लिपिड बायलेयर है, ओके, लिपिड बायलेयर है, ऊपर के साइड पे प्रोटीन है और नीचे की साइड पे प्रोटीन. फिर दोनों के मॉडल में डिफरेंस क्या था? He said protein is fibrous in nature. तो किसने बोला? रॉबर्टसन ने बोला प्रोटीन ऐसे फाइबरस नेचर के हैं, फाइबर लाइक प्रोटीन है, एंड फिर फॉस्फोलिपिड है और फिर फाइबरस प्रोटीन है. दिस वाज सेड बाय रॉबर्टसन. कीप राइटिंग द रनिंग नोट्स, बिकॉज यू आई एम गिविंग यू नोट्स, नोट्स में इतना डिटेल नहीं रहेगा, so you should be having your running notes also. हाँ, तो each and every point you have to write. अगर रुकना है, फास्ट हो रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो. Okay, so this was also the trilaminar model, but he called it as a unit membrane model. And इसमें जो प्रोटीन उसने बोला, रॉबर्टसन ने जो प्रोटीन बोले वो फाइब्रस थे, and Danieli and Davison ने जो बोला तो he said कि the protein is globular in nature. So these are the different kind of protein they were mentioned. इसने बोला प्रोटीन ग्लोब्यूलर है,
इसने बोला प्रोटीन फाइब्रस। ओके, एंड व्हाट ही सेड, और एक डिफरेंस उसने क्या, इसने इसका थिकनेस भी बोला। रॉबर्टसन ने क्या बोला, इसका थिकनेस भी दिया। ही सेड थिकनेस इज 75 to 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट, मतलब नैनोमीटर, more than nanometer. Angstrom unit is another unit, not same like nanometer, but angstrom unit is again smaller than this nanometer. So he said 75 to 100 angstrom unit इसका पूरा thickness, उसने वो thickness भी बोल दी। Okay, and he also said कि no water soluble substance can enter inside. Extracellular, यहाँ पे सब जगह पे water water water। सेल है, सपोजिंग दिस इज अ सेल, और सेल का जो सराउंडिंग होता है ना, तो वो पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है। सो वाटर एंड सम अदर प्रोटीन्स डिसॉल्व, ये सब उसके आजू बाजू रहेंगे। तो उसने बोला कि कोई भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस इसके अंदर नहीं जाएगा, बट अगेन कुड नॉट गिव द साइंटिफिक प्रूफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ, या मैं अपने आप से नहीं बात कर रही हूँ ना? पण तरी तो प्रूफ नाही करू शकला का व्यवस्थित? नाही, तो प्रूफ नाही देऊ शकला, फक्त त्याने त्याच्या हायपोथेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? कि आप कुछ इमेजिन करते हो साइंटिफिकली और उसको आप पुट फॉरवर्ड करते हो कि मुझे ऐसे लगता है। हाँ ठीक है, तुझे ऐसे लगता है, लेकिन साइंस को लगने पे नहीं चलता है। साइंस को प्रूफ चाहिए होता है। ओके, साइंस को प्रूफ लगता है हर बार। अगेन कम बैक टू द मेंडेल। मेंडेल ने तो प्रूफ भी दिया था, मतलब, लेकिन वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेंडेल स्टैटिस्टिशियन था एंड उसने सब मैथमेटिकल प्रूफ मेंडेल हैज गिवन फॉर हिज फाइंडिंग, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दोस मैथमेटिकल प्रूफ। उसकी एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि इतना ग्रेट, मतलब थैंक्स टू मेंडेल कि हम लोगों के पास आज सभी डिसीज के लिए ऑलमोस्ट अपने पास उसका पूरा सोल्यूशन है। कोरोना का भी सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया थैंक्स टू द मेंडेल। ओके, so the molecular biology and genetics went so much ahead, medicinal science went so much ahead thanks to Mendel। लेकिन उसका जो था, लोगों ने उसको बोला कि अरे क्या बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करता है, उसमें मैथ्स लगाता है। बट नाउअडेज, मैंने जैसे पहले भी आपको बायोस्टैटिस्टिक्स समझाते टाइम बोला कि एनी बायोलॉजिकल रिसर्च अगर स्टैटिस्टिक्स का उस पे स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है या स्टैटिस्टिशियन ने उसको अप्रूव नहीं किया है, तब तक आपका डेटा ऑथेंटिक नहीं होता है। ओके, तो मुझे कुछ लग रहा है, लेकिन उसके लिए प्रूफ भी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला कि मुझे लग रहा है कि ऐसा मॉडल हो सकता है। ओके, डैनियल डैवसन ने भी बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन उसको प्रूफ दो। सो दे वर नॉट एबल टू गिव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, and then both the model were not accepted। Okay, and this both model failed, right? Yes, any doubt with this? So this was Daniel Dawson and he was a Robertson। दोनों का मॉडल सेम था। इसने बोला ये फाइब्रस प्रोटीन है, उसने बोला वो ग्लोबुलर प्रोटीन। इसने एडिशनली बोला बिकॉज इसने किया 1959 में, उसने किया था 1935, तो ये थोड़ा वन स्टेप अहेड गया। ओके, एंड उसने बोला कि इसका थिकनेस इतना है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस अंदर एंटर नहीं कर सकते, वो सही था। उसने उसके लिए प्रूफ किया कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस एंटर नहीं कर सकते, लेकिन इसके वजह से ही नहीं कर सकते वो नहीं बोल पाया। He could not give the scientific explanation for whatever he was telling, and hence this both model failed। And then the third scientist came into picture, and now your NCERT has mentioned this। The third scientist was, पढ़ो NCERT में कौन सा दिया देखो। Yes, है कुछ दिया हुआ। Open your NCERT। Open NCERT and find out it on page number. Just let me check the page number. Yes, on page number 131. Name the scientist. Find out the scientist and name that scientist.
मिल रहा है उसका नाम? 131, 132 दोनों पेज पे देखो, हाईलाइट करो उसका नाम, यू गेट क्वेश्चन ऑन दैट. And this model was accepted. Until today, we are doing any research on the cell with respect to considering this model only. बोलो, मिला साइंटिस्ट का नाम? Search on page number 131 and 132. Singer and Nicholson. Yes, he was. 1972. Yes, he was Singer and Nicholson. And उसके मॉडल का नाम क्या था? Fluid mosaic model. Yeah, he was Singer and Nicholson. And the model was fluid mosaic model. Singer and Nicholson, and the model was fluid mosaic model. Okay, so the membrane is composed of lipid. वो उन्होंने भी बोला था, वो सही था. Arranged in bilayer, ये भी सही था. But then उसका arrangement was different. Okay, arrangement was different, and he has given all the scientific explanation for that. Until today, we are accepting Singer and Nicholson's model. Right? तो अभी मैं ये सेशन एंड करती हूँ. अगेन यू कैन जॉइन बैक.